Now, at first, a big good morning to all the students of class 9 because today the students of class 9 are expected to open their books and see what is written there in the books. Line will be explained by me with word meanings. But one thing I would like to tell you that some part was left out. I have already written there the remaining part of this poem, Legend of the Northland. A legend of the Northland was being taught last time, and today I am going to finish this poem. So you see the book name is given Beehive. It contains all the poems, and the poem already written here, A Legend of the Northland. The remaining part as you have previously seen. Okay, and you will remember that these lines are there, stanzas I am going to read again. It's written, now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. So the first half of the stanza was explained already, but I am going to recapitulate this very stanza. Okay, once again. So meaning thereby is this, that now you shall build as the birds do. St. Peter got very much irritated and annoyed by the behavior of the old lady, who was not willing to give him sufficient amount of food to eat. She wanted to give a small bread, a small loaf. Why? Because she was a selfish lady. She didn't want to give a larger one, a bigger one, so that Saint Peter could quench his hunger. In this way, he was very hungry and thirsty, and he was not getting what? Something to eat, the bread to eat. That's why he was feeling irritation. He got annoyed, and out of annoyance, he gave a curse. He cursed the lady. What is the curse? It's written here. Now you shall build as the birds do. Okay, he told that the house where she was living was not meant for the lady. She should live there in the forest, on the trees, and she will build a nest by herself. And the food, so far as the food was concerned, she will bore and bore and bore, means she will make hole in the bark of the tree, and from inside the bark she will get some insects, and scanty means very little bit, that won't be sufficient to quench her hunger. This is the thing. She is now very much perturbed because Saint Peter was bent upon. He was just adamant to give a curse to the lady because the lady was not feeling the need of this man. He was a holy man, and he was not asking for a lot of things. He was not asking for too much food. He wanted to have a little bit. थोड़ा सा वो खाना चाहता था. अब वो औरत इतनी सेल्फिश थी कि वो उसको वो भी देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उसने श्राप दिया उसको. और वो श्राप यही था कि वो मानव के बनाए हुए इस घर में नहीं रहेगी. मैन मेड हाउस would be a suitable place for this lady, कि वो इसके लायक नहीं है. और उन्होंने उसको कहा कि वो चिड़िया बन जाएगी, रहेगी पेड़ के ऊपर. And shall get a scanty food. Scanty means small amount. थोड़ा सा little bit she will get. वो भी कैसे? By boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Dry wood, that is bark, छाल. पेड़ का छाल जो कि ड्राई है और वो तो है ही है, उसको बोर करेगी और बोर करके उसमें से निकालेगी थोड़ा सा इंसेक्ट्स वगैरह, जो टर्माइट वगैरह होता है, जो भी चीज़ उसके खाने लायक है, एडिबल है, वो खाएगी. वो भी इनसफिशिएंट होगा, काफ़ी प्रचुर मात्रा में वो भी नहीं मिलेगा उसको. ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड शी विल कीप बोरिंग और बोरिंग, और इस
इस तरह से वो उसमें से निकाल निकाल करके झाड़ झाड़ करके खाती रहेगी. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Then she went through the chimney. After being crossed by Saint Peter, she got converted into a small bird. And through the chimney, through the pipe, she went up. And when she was passing through the chimney, what happened? With the clothes, her clothes got burnt completely. वो पूरी तरह से वो जल गए. She went through the chimney, never speaking a word. She was nonchalantly, very silently going up. और इस तरह से वो ऊपर चली गई शांति से चुपचाप. And out of the top flew a woodpecker. And when the very bird came out of the very chimney, it was recognized as it was a bird named woodpecker. वो पेक करती थी. पेक करना मतलब खोदना. इसको वो खोद करके अपना काम जाती थी, खाने का भोजन प्राप्त करती थी. इस तरह से वो वुडपेकर कहलाई. For she was changed to a bird. और इस तरह से she was changed completely. She was a human being, but due to her wrong deeds, due to her wrong action, she got changed, converted, turned into a bird. इस तरह से कितना कष्टमय जीवन उसको हो गया. तो आप दूसरे का कष्ट अगर नहीं समझते हैं, सपोज यू फेल टू रिकॉग्नाइज अदर्स पेन एंड प्रॉब्लम, देन यू विल गेट द रिजल्ट जस्ट कंट्री टू इट. आपका भी ठीक किसी के विरोधाभास आपको भी कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको मंजूर नहीं होगा. काफी कष्ट आपको भी उठाना पड़ेगा. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. आपने किसी को कष्ट देना चाहा, आपको बदले में कष्ट मिल गया. She had a scarlet cap on her head. Scarlet, maroon type, red also you may call. लाल कैप उसके सर के ऊपर. आप woodpecker को देखेंगे, whenever you see the bird woodpecker, you will see the red scarlet, red colored cap. वो एक तरह का लाल कैप लगाती है अपने हेड पर. And that was left the same. और इस तरह से वो जो लाल कैप लगाई थी वो रह गया, वो नहीं जला था. सेम वैसा ही रह गया. जो उसके चिड़िया बनने के बाद भी उसके सर पर वो रेड और स्कारलेट जो भी कहिए वो दिख रहा था. इस तरह से वो चिड़िया पहचानी जा सकती थी वुडपेकर के नाम से. बट ऑल द रेस्ट ऑफ her clothes were burned, black as a coal in the flame. Black as a coal in the flame. Okay, in the chimney too much heat was there, and in the heat the clothes, the garment she was wearing, the lady was wearing, okay, to cover her body, that got completely burnt. और पूरी तरह से एकदम जल गया. और इस तरह से वो राख बन गया, काला हो गया. वही काला कलर जो है वो दिख रहा है उसके बटन उसका लगता है ब्लैक की तरह से. ऊपर रेड कैप लगता है. वो काला क्या है? द ब्लैक कलर इज नथिंग बट द बर्न्ड क्लोथ्स ऑफ द बर्ड. ओके, चिमनी से पास करने से वो जल गया गर्मी से. तो इस तरह से लास्ट स्टैंजा को हम देखते हैं. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, boiling and boring for food. Country is a word there. Country has got many meanings also. Country means देश है. Country गांव के लिए जो रूरल एरियाज है उसके लिए भी आता है. ऐसे एरिया के क्षेत्र में भी रहता है उसको, है ना. कंट्री का ऐसा नहीं है कि नेशन के लिए सिर्फ आता है. लेकिन आप यहाँ पर अब ले सकते हैं तो ब्रॉड सेंस में भी आप ले सकते हैं कि एवरीवेयर शी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वुडपेकर. वो आप कहीं भी जाएं, एवरी कंट्री स्कूल बॉय शी हैज सीन हर इन द वुड. In the wood she was found everywhere. Even school boys used to go, suppose somewhere in the forest area, that they would see the very bird sitting on the top of the tree or inside the leaves of the tree. इस तरह से वो चिड़िया मिलेगी बैठी हुई. लेकिन उसकी ये दशा कैसे हुई? यही गलत विचार, गलत सोच के कारण. Where she lives in the trees till this very day. This very day, very का मतलब क्या है? ये खास इस दिन तक आपको अभी यहाँ वेरी का मतलब बहुत से नहीं है. दिस वेरी डे अभी तक उसको आप देख सकते हैं. वुडपेकर कहीं भी आपको देखे तो वो स्कारलेट कैप सर पे धारण किए हुए वो आपको मिल जाएगी. बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. एंड इन ऑर्डर टू गेट फूड, इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फूड, शी यूज्ड टू पिक. बोर करते थे वो
खोद करके उसे इंसेक्ट निकाल करके अपनी भूख मिटाती थी। इस तरह से बेचारी अपने करनी का फल पा करके आज कितना बढ़िया मानव शरीर त्याग दिया गया चिड़िया बन के। इस तरह से इसमें आपने देखा वो सब कुछ। और इस तरह से आपने क्वेश्चन भी इसमें कुछ है, जैसे विच कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर्स टू। तो आपने इसमें आपको पहले स्टार्टिंग में हमने बताया था ये नॉर्थलैंड है जो थोड़ा सा कोल्ड रीजन है, पोलर रीजन की तरफ नॉर्थ पार्ट जिसको यूरोप का बोला जाए, जैसे वहाँ कनाडा भी है, जैसे हम बताए थे आपको ये क्या बोलते थे ये बहुत सारे, जैसे वो चाइना का भी कुछ पार्ट उधर पड़ता है, उसमें कुछ हिस्सा ऊपर वाला, इस तरह से वो सब एरिया है जहाँ पर ये हैपनिंग जो है ना हुई थी, घटना हुई थी। तो इस तरह से आप इसको समझ रहे हैं भाई, तो खुद से आपको करना है ये क्वेश्चन और आपको होमवर्क के रूप में आप देना भी है असाइनमेंट। तो फिर इसमें आपको बहुत सारी चीजें, आपको एक और चीज में बताया गया था बैलेट इज ए शॉर्ट बैलेट था। ये बैलेट आपको शुरू में हमने कह दिया था कि बैलेट है वो क्या होता है। बैलेट एक नैरेटिव स्टोरी टाइप पोएम होता है, स्टोरी टाइप पोएम है। नैरेटिव स्टोरी वो कोई कहानी टाइप का है, उसमें डिपिक्शन होता है, लगता है कोई स्टोरी है, लेकिन वो ये लाइन जो है ना पोएटिक लाइन्स है, म्यूजिकल लाइन्स होता है। इस तरह से बैलेट आपको बता दिया था। अब हम नेक्स्ट हमारा जो पोएम है उस पर हम आप लाते हैं, और ये आप बुक में अपना अगला वाला नेक्स्ट पोएम, जस्ट टर्न द पेजेस एंड यू विल कम टू दिस पोएम। अगला पोएम आपका इससे शुरू होता है, 6 नंबर जो आप देख लें बुक में, नो मेन आर फॉरेन। नो मेन आर फॉरेन is the next poem that is going to be taught to you. Okay, and now you open your book, you see the lines. So in this way, no men are foreign. The title suggests a lot of things. Just by seeing the title, you will understand that no men are foreign, no men are strange. All are our brothers, sisters. ये भाईचारा, भाई बंधु हम सब हैं, लेकिन हमने अपने को बांट लिया है अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग बाउंड्रीज में, एक लाइन ऑफ डिमार्केशन इस तरह से हमने बना करके हमने अपने को अलग कर लिया है अपने भाई बंधुओं से। इस तरह से आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं जिसको हम पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं आप, देखिए। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? ओके, हैव यू एवर थॉट, क्या कभी सोचा होगा कुछ लोग जो है स्ट्रेंज है, स्ट्रेंजर है, अजनबी हैं? नहीं, हाँ हम सोचते हैं, लेकिन ये हमारी भूल है। नो, ये mistakenly we think about it that some people are strangers, some people are alien. ये कुछ लोग एलियन की तरह हमसे काफी दूर, अलग थलग, आइसोलेटेड। नहीं, देखा जाए तो हम सब ईश्वर के संतान हैं, सब भाई बंधु हैं, और सब हम लोग उसी ईश्वर को बनाए हुए, एक ही तरह का शरीर, एक ही तरह की आत्मा, सब कुछ एक ही तरह का चीज पजेस करते हैं। ये लाइन आपने देखा कि कोई भी आदमी स्ट्रेंजर नहीं है, अगर आप माने तो। We have many ways to think of other people as different from us as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all humans. Okay, the poet has tried his level best to make us feel, make us recognize that we are same. Okay, we have divided ourselves. We have drawn some lines of division. Okay, they are living in other countries, we are in other countries. But it's not so. We all are same. We all are brothers and sisters. ये विदेशी कोई नहीं है, स्ट्रेंजर कोई नहीं है, हम सब एक हैं। ये फील करने की चीज है। ऐसे बड़े बड़े जो लोग महात्मा लोग हैं वो सबको अपना समझते हैं, सबको एक समझते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आए जो पूरी मानवता को अपना समझा, पूरे मनुष्य को, ये ह्यूमन बींग्स कहीं भी हैं, सपोज दे आर इन फॉरेन कंट्रीज और इंडिया, ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें एक नाम अगर हम आपके सामने कहें कि हमारे बापू हर मनुष्य को अपना समझते थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी का भी खून खराबा हो कोई, क्योंकि हर आदमी भाई बंधु है, क्यों किसी का खून बहेगा? इट डिडंट वांट ब्लडशेड, ब्लडशेड के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे। हम प्यार से एक साथ मिल करके बांट करके अपना काम करें, लड़ाई झगड़ा आपस में शोभा नहीं देता
देता, लेकिन हमारी मेंटलिटी है कि हम चाहते हैं कि हम लड़ लें, झगड़ लें, है ना, भाई भाई लड़ लें, जैसा कि महाभारत में आपने देखा भाई भाई लड़ ले रहे हैं थोड़े से स्वार्थ के लिए। ऐसे महान लोग नहीं समझते हैं, महान तो समझते हैं कि हम सब भाई हैं, प्यार से, हाँ, जिद करके, कुछ खाना त्याग करके, अनशन करके हम किसी तरह से मना ले अपने भाई को और हम भाई प्यार से रहें। ये बड़े थॉट वाले लोग हैं धरती पर, हमको महसूस करना है। उसी में से एक ये भी है जेम्स किरकप। जेम्स किरकप इज द पोएट, ही ऑल्सो थिंक्स ऑन द सेम पैटर्न बापू यूज्ड टू थिंक ऑन। जैसे बापू सोचते थे वैसे ये भी सोचते हैं, हम सब एक हैं, फिर हम क्यों कष्ट दें अपने को। हाँ, ये बहुत बढ़िया कविता है, आप लाइन देखेंगे। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. Remember, no men are strange, no country is foreign. We have to remember it. We have to keep in our mind that no one is foreigner, no one is stranger. Everyone is known to us. Everyone belongs to us. हर आदमी हमसे जुड़ा है, सब हमारे भाई बंधु हैं। हम सब की अच्छाई चाहेंगे, हम सब की भलाई चाहेंगे। तो इसमें महान लोग की जो सोच थी वो कहाँ गलत थी, और सबको अपना समझे। ये तो आपके एक पोएट भी कहते हैं, हम सब भाई बंधु हैं, हम एक हैं, कोई अजनबी नहीं है, कोई एलियनेटेड नहीं है हमसे। एलियन की तरफ से हम व्यवहार ना करें, सबको प्यार से देखें, प्यार से उनसे बात करें। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई विदेशी देश नहीं है। Beneath all uniforms, a single body breathes. We are wearing the outfit or the uniform, वो सेम बॉडी को कवर करता है। यूनिफॉर्म डिफरेंट हो सकते हैं, ये आउटफिट डिफरेंट है, गारमेंट्स डिफरेंट है, बट द बॉडी इनसाइड द गारमेंट दैट इज नॉट डिफरेंट। सेम बॉडी वी आर पॉजेसिंग, वही बॉडी है हमारे अंदर, और सब कुछ आत्मा वही है। हम ब्रीथ भी करते हैं, हम लोग सांस जो लेते हैं उसको इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, सब कुछ वही चीज है। हर मनुष्य ऑक्सीजन इनहेल करता है और CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। फिर हम लोग अजनबी कैसे हैं? ये हमारे दिमाग की गंदगी है, ये फितूर है। हम सब मानव प्यार से रहें तो ये दुनिया कितना बढ़िया, कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो इस चीज को महसूस करा रहे हैं हमारे कवि भी, जेम्स किरकप। Like ours, the land our brothers walk upon. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this. The same earth we are sharing, all the brothers. हम सारे भाई सेम अर्थ को शेयर कर रहे हैं। जिस धरती पर हम सब हैं, विचरण करते हैं, वी आर मूविंग एंड स्ट्रॉलिंग, ये सब एक ही धरती है जिसको हम शेयर कर रहे हैं। तो कैसे हम लोग अजनबी हैं, कैसे नहीं भाई बंधु हैं हम? In which we all shall lie. We are existing on the same earth. The earth we are sharing is same, and we people are also same. Then why we people cherish any sort of enmity for others? हम क्यों दुश्मनी का भाव रखें दूसरे से? और कोई ऐसा इंसान अगर होता है जो सबको अपना समझता है, हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी अगर हम में नहीं है तो किसी में तो है। कोई महामानव तो है जो हर इंसान को अपना भाई बंधु समझा। और इस तरह से ये कवि भी कह रहे हैं, ये पोएट भी कह रहे हैं कि इसी तरह हम सोचे तो ज्यादा स्वर्गमय हो जाएगा, ये हेवन की तरह दुनिया हो जाएगी। The two aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests. By wars, long winter starved, their hands are ours, and in their lines we read labor not different from our own. Some lines are here. Aware. Now, we are aware of the problem. We are aware of the things happening everywhere. हम लोग इसी से वाकिफ हैं, जागरूक हैं, अवेयर हैं, इसी को जानते हैं, अवेयर। उसी तरह से एक और वर्ड आ रहा है जिसको आप जानते ही हैं, स्टार्व्ड। स्टार्वेशन जिसका नाउन होता है, स्टार्व का मतलब भूखे मरना, भुखमरी की स्थिति हो जाती है। अभी जो स्थिति चल रही है इसमें बहुत से लोग इससे गुजर रहे हैं, दे आर स्टार्विंग। तो ये आप वर्ड समझ रहे हैं। उसके अलावा हार्वेस्ट वर्ड है। हार्वेस्ट का मतलब तो वर्ग में हो गया तो काटना भी हो जाता है, हाँ, तो हार्वेस्ट नाउन में हो जाता है तो ईल्ड हो गया जिसको बोलते हैं उपज, ये उपज के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है हम आपको दिखा रहे हैं, पढ़ के बता रहे हैं, आप खुद समझ जाएंगे। द टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। द अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर मीन्स
They are sharing the same air, same water and the sunlight they are just taking. और इस तरह से रोशनी जो है सूरज की वो सब एक ही है, पूरे मानव तक वो दे रही है एक गर्मी और एक चमक. ये सब कुछ उजाला जो फैल रहा है सब पर एक ही समान है, कहीं कोई ऐसा नहीं है डिफरेंस. एयर भी वही है जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हम ब्रीद इन करते हैं. वाटर भी सेम है. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट एंड द वेरी प्रोडक्शन हार्वेस्ट जो हम उसको यूज करते हैं बड़ा पीसफुली. वो सब देखिए वही अनाज हम खाते हैं. कोई ऐसा नहीं है कि कोई आयरन खाता है, कोई सिल्वर खाता है, कोई गोल्ड खाता है. वही हर चीज जो धरती माता देती है हर आदमी उस अनाज को खाता है अपने टेस्ट के हिसाब से. हाँ, इस तरह से सब कुछ वही है ग्रेन जो हर जगह है जिसको हम शेयर कर रहे हैं. बाई वॉट्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट है ना, आफ्टर लॉन्ग वॉर व्हाट हैपेंड, अ टाइप ऑफ कूलनेस, एक तरह की शांति, एक तरह की खामोशी टाइप का. ऑफुल ये कह लेंगे आप, वो जो खामोशी है वो ऑफुल है, बड़ी भयावह टाइप का. और इस तरह से ये जो विंटर टाइप का एकदम लगता है शिथिल हो गया सब कुछ, ऐसी स्थिति बन जाती है. और उसमें स्टार्वेशन, भुखमरी भी होती है और लोग भूखे भी मरने लगते हैं. तो बहुत कुछ नष्ट हो जाता है, एनिहिलेट हो जाता है. इस तरह से हम लड़ाई को अवॉइड करें, सब प्यार से रहें, सब भाई हम लोग एक हैं तो ज्यादा बेहतर होगा. The hands are ours and in the lines we read a labor not different from our own. The lines on the palms के ऊपर जो रेखाएं हैं सभी मनुष्य के ऊपर सेम है. हर आदमी के पाम्स को आप देखेंगे, अगर आप पामिस्ट हैं तो उनके भाग को पढ़ भी सकते हैं, वही लाइंस हैं. और इस तरह से लाइन ऑफ लेबर है, हर आदमी को परिश्रम करना है, परिश्रम के बाद ही उसको कुछ मिलता है, प्राप्त होता है. ये हर मनुष्य के लिए सच्चाई है. दिस इज द फैक्ट for each and every one, because without labor you can't get importance also, you can't earn your livelihood, you can't earn your bread, nothing at all. तो लेबर का लाइन तो हर जगह है, परिश्रम करना है, श्रम करना है. अगर आप आए हैं जीवन में तो इस तरह से आप जो है बिना श्रम के पहचाने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अकर्मण्य व्यक्ति को कहीं महत्व नहीं मिलता है. इसलिए कर्मशील भी बनना है, लेबर भी करना है, और वो बिना किए आप नहीं कुछ कर सकते. तो हर आदमी जब लेबर करता है तो हम सब एक हैं. हर आदमी लेबर करता है, हर आदमी जब लेबर करता है तो उस हिसाब से भी देखें तो हम सब एक हैं. रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स that wake or sleep and strength that can be one. Remember the eyes like ours. Every body is having the same eyes. हर आदमी वही eyes. हाँ, the eyes which are awakening or sleeping. आंखें जो अवेकन करती, जगती है. अवेक मतलब जगना जगाना. आंखें जो खुलती हैं, नींद से खुलती हैं तो जग जाती हैं या सोती हैं, सबके साथ वही चीज है. एक ही तरह की आंखें हैं सबको. Sleep and a strength that can be won by love, and the strength of love it is perpetual. ये तो eternal है, ये तो permanent है, और इसको हम लोग जो प्यार की ताकत है उसको जीतते हैं, जो हमेशा स्थायी रूप से हमारे साथ होता है. तो हम प्यार से रहें, सब भाई को पहचाने कि हमारे ही भाई हैं. हम किसी के अगेंस्ट हथियार नहीं उठाएंगे, ये प्यार से हम डील करेंगे. हर चीज का सोल्यूशन प्यार से निकालते हैं. इस तरह से आप देख रहे हैं ये कवि भी कितनी अच्छी बात बता रहे हैं आपको, जो आप अपने भी देश में ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने इस चीज पर स्ट्रेस दिया है, जिसको आप समझें और उसको महसूस करें. कहता है कि ये स्ट्रेंथ ऑफ लव है, ये स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव. दिस स्ट्रेंथ कैन बी वन, विन मीन्स जीतना, ओवरकम कर. इसको हम ओवरकम करते हैं, वो गेट ओवर, उसको विन करते हैं, जीत लेते हैं. ये कैसे? प्यार की में एक ताकत है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है. और झगड़ा लड़ाई ये तो आपको आइसोलेट कर देगा, अलग थलग कर देगा, फिर आप अकेले हो जाएंगे. और इधर से फिर आगे का लाइन ये कह रहा है कि ऑल परचेज दिस वन बाय लव. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ. सेम लाइफ इज देयर एवरीवेयर. Every chunk of land, every piece of land, same life is existing. वही life exist करता है हर धरती के हर चप्पे पर. आप देखिएगा वही life है, वही मानवीय शरीर है. The human body that is covered with different clothes. Clothes might be different, okay? The language might be different. The way of talking and behaving, culture and this one,
civilization that is different, but we are same. We are not different. We cannot be divided. ये हम लोग का ये कल्चर सिविलाइजेशन अलग हो सकता है, लैंग्वेज भी अलग हो सकता है, हम तो सब एक हैं, हम सब अपने हैं. तो इस तरह से रिकग्नाइज वर्ड आया जो आप समझ गए. रिकग्नाइज मीन्स टू आइडेंटिफाई, पहचानना. किसी को आप पहचानते हैं. अंडरस्टैंड आप समझते हैं, सिंपल वर्ड है. नेक्स्ट स्टैंजा कहता है, लेट अस रिमेंबर whenever we are told, we are told means somebody tells us. We are told पैसिव वॉइस में आ रहा है. हम लोगों को कहा जाता है. क्या कहा जाता है? लेट अस रिमेंबर, हमें याद करें, आए हम इस चीज को देखें, याद करें. टू हेट आवर ब्रदर्स. वी आर टोल्ड टू हैव हेट्रेड इन आवर हार्ट फॉर आवर ब्रदर्स. दिस इज नॉट गुड. This is wrong suggestion. If somebody tells you to cherish hatred in your heart for your brothers, this is not. If somebody tells you to have or to harbor love for your brothers, fellow beings, then it is good. The man who suggests to extend helping hand to others is a good man, is a right man. वो आदमी जो आपको प्यार की सबक सिखाता है, सही में वही इंसान है, वही ईश्वर का रूप है. This does correct to hate our brothers. It is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. It's ourselves that we shall dispose, possess, lena, possess, to own, dispossess, dispose, वो हटा देना, फेंक देना, दूर कर देना, उसको नहीं ओन करना. इस तरह से चीज बिट्रे करना. बिट्रे मतलब धोखा देना, रिसीव करना, चीट करना. ये सारे जो बैड वर्ड्स हैं. कंडेम, कंडेम मीन्स भर्त्सना करना, शिकायत करना. तो इस तरह से कंडेमनेशन खराब चीज है, बिट्रेयल भी खराब चीज है. डिस्पोजेस करते हैं ये चीज को, कैसे हम अपने को पोजेस नहीं करते, उनको डिस्पोजेस करते हैं, वो लूज करते हैं, उनको खो देते हैं. ये सारे गलत चीज है जो हम कर रहे हैं किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में, जो कि नहीं होना चाहिए. वी मस्ट हैव लव फॉर आवर ब्रदर्स हु आर शेयरिंग द सेम अर्थ, who are inhaling the same air and who are utilizing the same water and same sunlight. That's why we are same. Language हमको बांट नहीं सकता. ये धरती के अलग अलग टुकड़े हमको अलग नहीं कर सकते. हम सब के लिए दिल में प्यार रखें, तभी जाकर के हम अच्छे मानव कहलाएंगे, अच्छे इंसान कहलाएंगे. Remember, we who take arms against each other. If we condemn others, if we betray others, we raise arms against others. Arms means बाण भी होता है, लेकिन यहाँ arms का मतलब weapons है. Weapons मतलब हथियार जो हम उठाते हैं अपने भाई बंधुओं के खिलाफ, जो weapons उठाते हैं, ये गलत चीज है, ये अशोभनीय है. It is unbecoming for we people. We are human beings. We must be humane. Humane that is दयालुता. अंदर में ये हार्ट में ये दयालुता होनी चाहिए कि हमारे भाई हैं, हम इनके खिलाफ नहीं जाएंगे, हम कभी लड़ाई झगड़ा करके अपनी बात नहीं मनवाएंगे, प्यार से रहेंगे. Remember who take arms against us. Okay? It is the human earth that we defile. Defile means to dirty, to make dirty. Dirty noun भी है, verb भी है. तो dirty जब noun हो गया तो गंदगी आप समझ रहे हैं, dirty. और ये verb भी हो जाता है. तो don't try to dirty the earth by bloodshed. ये खराब विचार भी आप कह सकते हैं कि खराब विचारों से इस धरती को आप प्रदूषित कर रहे हैं, इसको डिफाइल कर रहे हैं. ये नहीं होना चाहिए. Our hells of fire and dust outrage the innocence. Our hells of fire. ये फायर जो है वो अगर नारकीय चीज अगर मानी जाए तो ये क्रोध के सेंस में आता है. गुस्सा है आपके अंदर, एक आग धधक रही है, एक रिवेंज और रिटेलिएशन की जो प्रतिशोध की भावना जो आती है, ये उसी तरह आग की तरह है, जो नहीं होना चाहिए. इट्स ऑलवेज बैड. Our hells of fire and dust outrage the innocence. आप निर्दोष है, आप इनोसेंट हैं, आपके अंदर वो सब कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया जाना चाहिए, किसी कहने पर भी नहीं, ना अपनी सोच ऐसी बनानी है. You should never think to raise arms against others. You should never think to fight with others. ये सारी चीज हमारे दिमाग को भी गंदा करता है, इस धरती को भी खराब करता है. इस तरह से हम अपने अंदर ये आग जो है, जिसको हम गुस्सा भी करते हैं, हम इसको एंगर, रिजेंटमेंट जो करें, इंडिग्नेशन, ये सब नहीं रखेंगे अपने भाई के प्रति. Of air that is everywhere, our own, हवा जो हर जगह है हमारी है, वो हवा हमारी है, हमारे भाई के लिए है, हम सब के लिए है. Remember, no men are foreign and no country is strange. And we should keep in our mind
that no country is foreign, no person is foreigner, no person is stranger. इस तरह से ये बात एकदम क्लियर हो रही है और इसमें आपने देखा कि लाइन जो है काफी साफ है. अगर if you have any sort of problem, you will talk with me, you will ask questions, I will answer you. And now we will meet tomorrow. Tomorrow I will read another poem. Thank you.